السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما، وزدنا علما، وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. الحمدللہ ہم نے اپنی تجوید کی کتاب اسہل التجوید فی القرآن المجید کو شروع کیا، تجوید کو پڑھنے کے لیے، جس کے اندر الحمدللہ ہم نے اہمیت سے شروع کیا. اس کے بعد ہم بسم اللہ کا بیان پڑھتے آئے، پھر ہم نے جو ہے نا دیکھا مخارج کتنے ہیں، مخرج کو دیکھنا شروع کیا. اب مخارج کے اندر ہم لوگوں نے حروف پہلا مخرج دیکھا جو کہ جوف فم ہے، حروف مدہ نکل رہے ہیں. پھر ہم نے دوسرا مخرج، تیسرا مخرج اور چوتھا مخرج دیکھا. پھر ہم نے ساتھ تمرین کے ساتھ وہ بھی کی کہ حروف حلقیہ کون سے ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا اور غین، خا. ہم نے کہا کہ یہ 6 حروف ہیں جن کو حروف حلقیہ کہتے ہیں، یعنی حلق سے نکلنے والے. حلق کو ہم نے ڈیوائیڈ کیا 3 حصوں میں. ٹھیک ہے، پہلا حصہ اقصی الحلق کہلایا جو کہ سینے کے قریب ہے، وہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا. تو وہ ہے حمزہ ہا، پھر عین ہا، پھر غین خا. ہم نے اس طریقے سے اس کو ڈفرینشیٹ کیا اور ہم نے بتایا کہ کہاں سے کون سا لفظ ادا ہوگا. اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ جب بھی ہم ان الفاظ کو ادا کرنے کے لگیں گے تو ہمیں اس بات کا احساس ہوگا کہ ہم کون سے حلق کا استعمال کر رہے ہیں. تو اگر ہم کسی اور حلق کا استعمال کر رہے ہوں گے، حلق کے کسی دوسرے حصے کا استعمال کر رہے ہوں گے جہاں سے اس حرف نے ادا ہونا ہی نہیں ہے، تو ہمیں اس چیز کا آئیڈیا ہو جائے گا کہ میں اسے رونگ نہ پروناؤنس کر رہی ہوں. اوکے، تو ہم نے کیا کیا، اکثر حالانکہ سینے کے قریب ہے تو یہاں سے کس چیز کی کیا آسانی سے نکل رہا ہے، حمزہ ہا. ہمیں خود آئیڈیا ہوتا ہے کہ جب ہم بول رہے ہیں تو ہماری آواز کہاں سے آ رہی ہے. دوسرا ہم نے بات کی تھی کہ وسط الحلق ہے، تیسرا مخرج جہاں سے نکل رہا ہے عین اور ہا. ہمیں واضح وائبریشن فیل ہوتی ہے حلق کے درمیان والے حصے کے اندر کہ یہاں سے ہمارا یہ مخرج نکل رہا ہے، حروف نکل رہے ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے ادنا اور حلق کی بات کہی کہ منہ کے جو شروع والا حصہ ہے حلق کے، جو منہ کے قریب ہے، وہاں سے کیا ادا ہوگا، غین اور خا. یہ بھی آپ ادا کریں گے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ یہ یہیں سے نکل رہے ہیں. یہ سب چیزیں ہم لوگ ڈیٹیل کے اندر پڑھ چکے ہیں، تو اس لیے میں صرف آپ کو ریوائز کروانے کے لیے ابھی ہم نے اس کو دیکھا ہے تاکہ ایک ہمارا پیچھے سے ایک تمہید بن جائے. پھر ہمارا ہے پانچواں مخرج اقصی اللسان، جو کہ آج ہم نے پڑھنا ہے. پانچواں مخرج ہے اقصی اللسان. اب بات آ گئی کس کی، زبان کی. اب یہاں پر ہم نے پہلے تھی حلق کی بات، اب حلق سے ہم اوپر آ گئے ہیں. اب ہم نے کیا دیکھنا ہے، سوری، اب ہم نے دیکھنا ہے زبان کو، زبان کی زبان کی بات آ گئی. اب یہ ہے اقصی اللسان کی بات. اب دیکھیں وہاں ہم نے اقصی کی بات کہی، اقصی سے مراد کیا تھا، جو کس کے قریب تھا، جو حلق کے قریب تھا. یہاں کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے، یعنی زبان کی جڑ اور بالمقابل اوپر کا تالو، یعنی جو حلق کے قریب والا حصہ ہے. زبان کی جڑ، جڑ کہاں ہوتی ہے، پیچھے کی طرف ہوتی ہے یا آگے ہوتی ہے، پیچھے ہوتی ہے نا. جڑ اور بالمقابل اوپر کا تالو، اوپر کا تالو پیچھے ہوتا ہے نا، آگے تو نہیں لگا ہوتا نا ہمارا، پیچھے ہی ہوتا ہے. تو یہ والی جو جگہ ہے یہاں سے ادا ہوگا قاف، قاف. اب آپ لوگ ادا کریں، پروناؤنس کریں تو آپ کو خود محسوس ہوگا کہ میں کہاں سے ادا کر رہی ہوں. یہاں پر یہ الفاظ کہاں سے ادا ہو رہے ہیں، اقصی اللسان سے. لسان کہتے ہیں زبان کو، اقصی مینز جو کہ گہرائی کی طرف ہے، جیسے کہ ہم نے وہاں حلق کی طرف بات کی تھی. اقصی الحلق جو کہ سینے کے بالمقابل حصہ ہے، اور یہاں پر کیا ہے، یہ حلق کے بالمقابل حصہ ہے. ٹھیک ہے، تو اب ادا کریں. قاف، ایک ہوتا ہے قاف اور ایک ہوتا ہے قاف. جیسے میں نے پہلے بھی بات واضح کی تھی کہ نا میرے پاس نا وہ نہیں ہے، کیا کہتے ہیں، پین نہیں ہے، تو اس وجہ سے میں اسی طریقے سے ٹائپنگ کے طور پہ ہی اس کو یوز کرتی ہوں، تو پھر یہ اکثر غلط ہو جاتا ہے، تو مائنڈ مت کیجیے گا. قاف جو کہ نقطوں والا ہے وہ موٹا ادا کیا جاتا ہے، اور جو ڈنڈے والا ہے وہ کاف باریک ادا کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ لوگ مجھے پڑھ کے سنائیں قاف کہ کیسے ادا کریں گے. میں دیکھتی ہوں پھر کہیں آپ لوگوں کی کوئی مسٹیک تو نہیں ہے. مائک آن کرتے جائیں اور اپنا سناتے جائیں.
قاف. दोबारा अदा करें। قاف. ठीक है। जहरा आप अदा करें। قاف. ठीक है, माशाल्लाह, बारकल्लाह फी। अच्छा, छठा मखरज है अक्सर लिसान, जुबान की जड़ और ऊपर का तालु, मगर काफ के मखरज से करीब, थोड़ा सा मुंह की तरफ, यहाँ से काफ निकलता है तो मखरज वही, लेकिन थोड़ा सा उससे करीब मखरज है। यानी कि काफ के मखरज से थोड़ा सा करीब, मुंह की तरफ, मुंह की तरफ, यानी हमने थोड़ा सा बाहर की तरफ आना है, मुंह की तरफ है। वो वाला कहाँ था? तालु के करीब था। ये काफ के मखरज के करीब है, ठीक है ना। वो था तालु के करीब, और ये काफ के मखरज के थोड़ा सा करीब है। जुबान की जड़ और ऊपर का तालु, मगर काफ के मखरज से थोड़ा सा मुंह के करीब, यहाँ से काफ निकलता है। काफ और काफ दोनों करीबुल मखरज हैं। इन दोनों को लहविया और लहातिया कहते हैं। अभी क्वेश्चन आ सकता है, लहविया और लहातिया किन्हें कहते हैं? आप कहेंगे लहविया और लहातिया कौफ और काफ दोनों को कहते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के करीबुल मखरज हैं, यानी एक दूसरे का, इनका मखरज एक दूसरे के साथ है, हमसाए हैं ये। लहात, हलक के ऊपर उभरे हुए गोश्त को लहात कहते हैं। जो हलक के ऊपर हमारा गोश्त उभरा हुआ होता है, तालू लटका होता है, उसे क्या कहते हैं? लहात कहते हैं अरबी के अंदर। सातवां मखरज है वस्तुल लिसान, जुबान का वस्त, जुबान का दरमियान। पहले हमने क्या कहा था? पहले हमने कहा था वस्तुल हलक, हलक का दरमियान। अब हम कह रहे हैं कि जुबान का दरमियान, ये है वस्तुल हलक, वस्तुल लिसान। ये है अक्सउल लिसान जो कि हलक के करीब है। ये है हाफाउल लिसान, जुबान के किनारे, ठीक है, इस जुबान की टिप भी। सातवां मखरज है वस्तुल लिसान, जुबान का दरमियान और ऊपर का तालु। जुबान का दरमियान और ऊपर का तालु भी इसमें इस्तेमाल होता है, ठीक है। यहाँ से जीम, शीन और या, गैर मद्दा या लीन या मुतहरिका निकलते हैं। इनको हरूफ शजरिया कहते हैं। हरूफ शजरिया किन्हें कहते हैं? जीम, शीन, या, गैर मद्दा जिनमें मद ना हो, या लीन और या मुतहरिका। शजर, जुबान और तालू के दरमियान फैलाव को शजर कहते हैं। जुबान, ये जुबान हो गई, ठीक है, और ये तालू लटका हुआ है, ठीक है। इसके दरमियान का जो फैलाव है, इस सब को क्या कहेंगे? शजर कहते हैं। शजरिया इसलिए इन्हें कहा जाता है क्योंकि यहाँ से ये अल्फाज अदा हो रहे हैं इस फैलाव के जरिए। जीम, शीन, या। जैसे हम देखेंगे कि जब भी हम इन अल्फाज को अदा करेंगे तो हमारा मुंह थोड़ा सा, हमारा जो ये वाला हिस्सा है तालू वाला, वो थोड़ा सा फैलेगा। जीम, शीन, या, इसमें इन तीनों अल्फाज को हर हरूफ को अदा करते हुए वो एरिया हमारा थोड़ा सा फैल रहा है, ठीक है, इसलिए इसको हरूफ शजरिया कहते हैं। अच्छा, अब हमने यहां तक पढ़ लिया। इसके बाद हमारा शुरू होता है अ, दांतों से का बयान शुरू होता है कि दांत कितने हैं हमारे, ठीक है। थोड़ा सा हम ये भी पढ़ लेते हैं। मैं इसमें सोच रही थी कि अभी आप लोगों को प्रैक्टिस की तरफ ले जाती है, लेकिन बट थोड़ा सा पढ़ते हैं क्योंकि काफी अभी बुक हमारी पढ़ी है रहती है, तो हमें जो है ना वाइंड अप भी तो करना है ज़ाहिर है इसको इंशाल्लाह ताला। इनके बाद जो मखारिज बयान हो रहे हैं, इनका ज्यादातर ताल्लुक दांतों से है। इससे दांतों के नाम और तादाद अच्छी तरह याद कर लें ताकि मखारिज के समझने में आसानी हो, ठीक है। अच्छे तरीके से याद करना है। इंसान के मुंह में कुल 32 दांत हैं, जिनमें 12 दांत और 20 दाढ़ें हैं। 12 दांत और 20 दाढ़ें, ठीक है। सामने वाले 4 दांतों को सनाया कहते हैं। सामने वाले 4 दांत, उनको क्या कहते हैं? सनाया कहते हैं। अब मैं इसकी पिक्चर भी आपको एक मिनट निकाल के दिखाती हूँ, ताकि ना हम लोग इसको अच्छे से समझ सके। हम कोई ऐसी पिक्चर निकालते हैं जिसके अंदर ना थोड़ा वाजे भी किया गया हो इन चीजों को। ये तो यूट्यूब का लिंक खुल गया है।
इनको सुना करें, ये बहुत अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह ना पढ़ाते हैं। अच्छा, अब इसका ना स्क्रीनशॉट चले मैं ना आपको भेजूंगी ये, इंशाल्लाह ताला। अच्छा खैर, ये देखें, अब मैं आपको नीचे वाले से दिखाती हूँ, जो इसके अंदर सिंपल दांत शो हो रहे हैं। ये देखें, सनाया है ऊपर वाले दो दांत। सनाया, पहले चार दांतों को कहेंगे, जो ऊपर दो, ऊपर वाले दो और नीचे वाले दो। जो ऊपर वाले दो हैं उन्हें कहेंगे सनाया उलिया, और नीचे वाले जो उसी की बिलमुकाबिल जो नीचे वाले दो हैं उनको कहेंगे सनाया सुफला। ठीक है, सनाया उलिया ऊपर वाले दो दांत, फिर सनाया सुफला नीचे वाले दो दांत। उसी के बिलमुकाबिल जो नीचे वाले दो दांत हैं उन्हें क्या कहेंगे, सनाया सुफला। सनाया उलिया मतलब ऊपर वाले दो दांत सामने के, और सनाया सुफला नीचे वाले दो दो दांत सामने के। ठीक है, इनके मुत्तसिल ही चार और दांत हैं। इनके मुत्तसिल का मतलब साथ ही चार और दांत हैं, एक ऊपर एक नीचे दाएं तरफ, और इसी तरह एक ऊपर एक नीचे बाएं तरफ। कैसे, अब देखें दोबारा समझते हैं। ए ये देखें, ये पहले हो गए दो ऊपर वाले, दो नीचे वाले, क्या हो गए, सनाया उलिया और सनाया सुफला। इनको दो, चारों को कहेंगे सनाया। ठीक है, सनाया, दो ऊपर वाले दो नीचे वाले, ऊपर वालों को सनाया उलिया, नीचे वालों को सनाया सुफला। फिर इसी के बिलमुकाबिल एक दाएं तरफ, और इसी तरह बिलमुकाबिल नीचे एक बाएं तरफ, एक उसी के बिलमुकाबिल नीचे, ये दो हो गए। और इसी तरह एक इस तरफ ये वाला दांत, और इसी के बिलमुकाबिल नीचे वाला दांत। ये क्या हो गए, ये मिलकर चार दांत हो गए। अब इन चार दांतों के बारे में वो क्या कह रहा है कि इन चारों को रुबाइयात कहते हैं, और इनका नाम, दूसरा नाम कवाते है, यानी काटने वाले। इनका दूसरा नाम क्या है, कवाते, काटने वाले। ठीक है, इनसे जो फूड है वो कटता है। जिस तरीके से आपने देखे होंगे शेर के दांत होते हैं, शेर के तकरीबन जितने भी ज्यादातर दांत होते हैं वो काटने वाले ही होते हैं, क्योंकि वो उसका उसका शिकार जो है, उसका जो फूड है वो शिकार के जरिए होता है, और शिकार में क्या है, ज्यादातर काटना होता है। तो वही नोक वाले होते हैं, जिस तरह हमारे ये नोकीले दांत होते हैं। फिर इन रुबायात के साथ चार दांत नोकदार हैं, एक ऊपर एक नीचे दाएं तरफ, एक ऊपर एक नीचे बाएं तरफ। इन चारों को अन्याब कहते हैं। हम इसको भी देखते हैं। दो, दो चार, सनाया उलिया सनाया सुफला। फिर ये एक ये और एक इधर एक इधर, चार दांत हो गए, क्या हो गए, रुबाइयात। फिर एक इधर और एक इधर, एक इधर और एक इधर, ये चार हो गए, ये क्या हो गए, अन्याब। क्या हो गए, अन्याब। हमने कितना पढ़ लिया, सनाया उलिया सनाया सुफला, फिर साथ हमने ये वाले चार दांत पढ़े, ये एक दो और ये दो, ये क्या थे, रुबाइयात। फिर इसी तरह एक साथ इसके ऊपर वाला एक नीचे वाला, इधर भी एक साथ ऊपर वाला नीचे वाला, ये क्या हो गए, अन्याब। ठीक है, हमने यहां तक समझ लिया। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। ये आगे बता रहा है कि इनका दूसरा नाम कवासिर है, ये तोड़ने वाले, ये करना चाहे याद तो कर ले, मरवरना मर्जी है। फिर इन अन्याब के साथ एक ऊपर एक नीचे दाएं तरफ, इसी तरह एक ऊपर एक नीचे बाएं तरफ चार दाढ़े हैं, इनका नाम है मवाहिक। इनका नाम है मवाहिक। बस हम आज इतना देखेंगे, ये ज्यादा हो जाएगा वरना। इनका नाम है मवाहिक। अब हम देखते हैं कि मवाहिक कहाँ पे है। किस तरह उसने बताया कि अनियाब के साथ एक ऊपर एक नीचे दाएं तरफ, ये सारा ऊपर नीचे का गेम खेल है। ठीक है, बस ये ऊपर नीचे याद रखना है आपने, बाकी तो नाम तो आपको इजीली इंशाल्लाह ताला याद हो जाएंगे। अब देखें, दोबारा समझते हैं। दो, दो चार, क्या हो गए, सनाया उलिया सनाया सुफला। दो ऊपर वाले दो नीचे वाले, सनाया उलिया सनाया सुफला हो गए। फिर एक ये वाला एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, इसी तरह एक साथ एक ऊपर एक नीचे, ये क्या हो गए, सनाया के बाद रुबाइयात। रुबाइयात के बाद फिर एक ऊपर एक नीचे, फिर एक ऊपर एक नीचे, ये क्या हो गए, अन्याब। फिर एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, ये चार दाढ़े हैं जिनका नाम है मवाहिक। समझ आ जाएगी इंशाल्लाह, मुझे बताएं। माइक ऑन करके बताएं, मुझे समझ आ रही है, याद हो जाएंगे। जी आप ही, पर थोड़े मुश्किल लग रहे हैं नाम। नहीं नहीं, मुश्किल नहीं समझना बिल्कुल भी, हम दोबारा देखते हैं। जब तक आपको आसान नहीं लगेगा तब तक मैं समझाती रहूंगी इंशाल्लाह। परेशान नहीं होना बिल्कुल भी, ऐसे ही लग रहा है। देखे, अपने अपने दांतों को देख लेना। पहले के जो सामने के हमारे बिल्कुल दो दांत है, जो हमारी पर्सनैलिटी को बहुत ज्यादा रिप्रेजेंट करते हैं। खासतौर पर जब इंसान मुस्कुराता है, उसकी मुस्कुराहट के अंदर बहुत अहम किरदार अदा करते हैं ये सामने वाले चार दांत, यानी दो ऊपर वाले और दो नीचे वाले। इनको मुस्कुराहटी दांत भी कहते हैं, मुस्कुराहट वाले दांत इन सामने नजर आते हैं जो।
अगर किसी के टेढ़े हो ना तो उसकी मुस्कुराहट भी अच्छी नहीं महसूस हो रही होती। इसीलिए अक्सर लोग जो है ना इसमें, और या फिर किसी के जो है ना बीच में सुराख मतलब जगह हो, स्पेस हो, लोग उसको भी इस तरीके से, ये देखें ये पिक्चर बनी हुई है किस तरीके से है ना, ऊपर नीचे, और एक ऊपर है एक नीचे, तो ये थोड़ा सा इस तरह फील होता है। ये वाले जो दांत है ना, ये दो ऊपर फिर दो नीचे, ये क्या है? सनायात है। सनाया ऊपर वाले दो सनाया उलिया, नीचे वाले दो सनाया सुफला। फिर इस तरीके से हम इधर आ जाते हैं, सनाया उलिया सनाया सुफला, दो नीचे के दो ऊपर के हो गए। अब साथ इसके एक ऊपर एक नीचे, फिर इस दूसरे वाले के भी साथ, इसको इसके साथ मिला ले और इसको इसके साथ मिला ले, ये दो है ना ये, इसको राइट वाले पे कर ले और इसको लेफ्ट वाले पे कर ले। राइट के साथ एक दो और एक, और नीचे वाला जो है उसके साथ एक, नहीं ऊपर नीचे, लेफ्ट के साथ फिर ऊपर नीचे दो, ये क्या हो गए? चार दांत हो गए। चार क्या कहलाएंगे? ये रुबाइयात। फिर उसके साथ आगे चले जाए, फिर एक इसके साथ वाला एक ऊपर एक नीचे, फिर उसके साथ वाला एक ऊपर एक नीचे, ये क्या कहलाएंगे? अन्याब, जिन्हें काटने वाले कहते हैं। फिर उसके साथ एक ऊपर एक नीचे, फिर एक ऊपर एक नीचे, साथ साथ जाते रहना है, एक ऊपर एक नीचे। क्या? चार दाढ़े हैं जिनको कहते हैं दवाहिक। अब हमने कितना पढ़ा? सनायात पढ़ी, जिनमें सनाया उलिया सनाया सुफला, फिर हमने रुबाइयात देखी, फिर हमने देखी अन्याब, और फिर दवाहिक। सनाया उलिया सनाया सुफला, जो कि ऊपर नीचे के दो दो दांत है, ठीक है। सनाया कह ले, सिर्फ सिंपल सनाया कह ले। सनाया, रुबाइयात, अन्याब, बवाहिक। सनाया, रुबाइयात, अन्याब, बवाहिक। और ये सारे एक दूसरे के साथ साथ हैं, ऊपर नीचे, बस सिर्फ सनाया है जिनके अंदर दो ऊपर, सनाया उलिया और नीचे वाला सनाया सुफला, बस। बाकी सारे एक एक हैं ऊपर नीचे। ऊपर नीचे याद रखना है बस, ये बात याद रखना है, ऊपर नीचे है लेकिन है एक एक ही। ऊपर नीचे दोनों तरफ, ऊपर नीचे दोनों तरफ रुबाइयात, ऊपर नीचे दोनों तरफ अनियाब, ऊपर नीचे दोनों तरफ दवाहिक। और दो दो सामने वाले ऊपर, दो सामने वाले नीचे, सुनाया। इस तरह मुझे सुनाए। कितने हैं? दोबारा रिवाइज करें। सनाया, सनाया के अंदर आ जाते हैं चार दांत, सनाया उलिया सनाया सुफला। फिर आगे एक ऊपर एक नीचे दाएं तरफ, एक ऊपर एक नीचे बाएं तरफ, रुबाइयात। फिर एक ऊपर एक नीचे दाएं तरफ, एक ऊपर एक नीचे बाएं तरफ, अन्याब। फिर एक ऊपर एक नीचे दाएं तरफ, फिर एक ऊपर एक नीचे बाएं तरफ, अन्याब हो गए। फिर एक ऊपर एक नीचे दाएं तरफ और एक ऊपर एक नीचे बाएं तरफ, ये क्या हो गया? दवाहिक। सिर्फ इतना याद करना है, इतना जितना भी आप लोगों को याद हो रहा है मुझे सुनाए अभी। जो फ्रंट वाले चार दांत हैं, ऊपर वाले दो और नीचे वाले दो, ये सनाया, ऊपर नाम वाले बताएं, सनाया ऊपर वाले उलिया, नीचे। नीचे सनाया उलिया और नीचे वाले सनाया सुफला। फिर माशाल्लाह। सनाया के साथ राइट पे भी ऊपर और नीचे और लेफ्ट और नीचे होंगे रुबाइयात। रुबाइयात के साथ लेफ्ट और राइट दोनों जगह पे होंगे अनियाब, ऊपर और नीचे। शाबाश। फिर अनियाब की राइट और लेफ्ट दोनों साइड पे ऊपर और नीचे होंगे दुआही। माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीक, बहुत खूब बहुत खूब। वेल डन, दिल खुश कर दिया। चले जहरा, आप भी सुनाए जल्दी से, और आप भी मेरा दिल खुश कर दें जल्दी से फिर। बाकी स्टूडेंट्स को पता नहीं क्या हो गया, इतने इतने अहम हमारे टॉपिक्स चल रहे हैं, अभी तो हमारा स्टार्ट हुई है और आप लोगों की बस होना शुरू हो गई है। जिसके भी जो भी जानने वाले हैं ग्रुप के अंदर बताएं, ग्रुप के अंदर बात करें, दूसरे को मोटिवेट करें। हमें एक दूसरे को ड्रैग करना है टुवर्ड्स जन्नत इंशाल्लाह ताला। ठीक है मोमिन, ऐसा नहीं है कि खुद ही करता रहे। अगर खुद ही करना हो तो फिर कोई भी ना करे ना, फिर कोई भी ना करे। किसी को क्या जरूरत है कि किसी के ऊपर इतना मेहनत करे? ठीक है ना। तो इसलिए एक दूसरे को हमने ड्रैग करना है टुवर्ड्स जाना इंशाल्लाह ताला। तो फिर एक दूसरे को मोटिवेट क्या करें, ग्रुप में बात क्या करें कि आज की क्लास ऐसी रही हमारी, हमें समझ आया, आज हमने ये पढ़ा। इस तरीके से बात करेंगे, दूसरे मोटिवेट होंगे। दूसरों को फ्रेंडशिप करें, कि लोगों के साथ हाय हेलो हाय करें, पर्सनल्स के अंदर उन्हें मोटिवेट करें, उनके साथ टीम बना लें कि आप, मैं आपको सुनाऊंगी आप मुझे सुनाएं। इस तरीके हम लोग तो इस तरीके से पढ़ा करते थे। इस तरीके से पढ़ेंगे तो एक ना एंथुसियाज्म होगा, एक जोश होगा, एक वरवला होगा। तो इस तरीके से फिर आप लोगों को बहुत खुशी होगी इंशाल्लाह ताला। ठीक है। चलिए, जहरा कह रही है कि मैं जो है ना हॉस्टल में हूँ। कोई मसला नहीं है जहरा, आपने ना मुझे पर्सनल में भेजनी है, ठीक है। आपने क्लास बस सेंड करते हैं, हम इंशाल्लाह ताला मैं आपके लोगों की प्रैक्टिस करवा दूं थोड़ी सी कुरान मजीद की। उसके बाद हम क्लास एंड करते हैं, और फिर जो है ना आपने मुझे भेजना है, मैं मुझे पर्सनल के अंदर। फिर वैसे भी जो असाइनमेंट होगी उसके अंदर तो ऑब्वियसली होगा ही होगा इंशाल्लाह ताला। चले, अब आपने ना मुझे, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ हमने जो पढ़ना है आज, और फिर हम लोग इंशाअल्लाह ताला उसको समझेंगे।
देखिए अगर समझाने वाला ना, पढ़ाने वाला अल्लाह के लिए पढ़ा रहा है ना, तो उससे तादाद से फिर मैटर नहीं करता उसे। वो तो हर एक का फिर अपना अपना है ना, कि जिसको अल्लाह चुने। हम तो बस, वो है ना, नबी से फरमाया, वमा कौन फरमाता है, वमा अलैना इल्लल बलाग, हम तक तो सिर्फ पहुंचा देना है। बाकी जो है ना, वो हर एक की अपनी, जिसको अल्लाह ताला चुनते हैं। अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाहु यजतबी इलैहि मन यशाउ व यहदी इलैहि मन युनीब। अल्लाह ताला जिसे चाहते हैं तो चुन लेते हैं, व यहदी इलैहि मन युनीब, और उससे अपने रास्ते की तरफ हिदायत दे देते हैं जिसे चाहते हैं। ये तो अल्लाह का चुनाव है, जिसे चाहता है करता है, हम कौन है। अच्छा, हम यहाँ तजवीद के अंदर तो हम यही पढ़ रहे थे, तफसीर के अंदर हम लोग सूरह नूर पढ़ रहे हैं। ठीक हो गया इंशाल्लाह ताला। तो सूरह, मुझे याद पड़ता है कि हमने सूरतुल फातिहा सुनाई थी आप लोगों ने लास्ट टाइम मुझे, तो आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह सूरतुल बकरा शुरू करनी है तजवीद के अंदर इंशाल्लाह ताला। चले, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अंदर देखा था कि हा जो है, बिस्मिल्लाह के, अल्लाह के नाम से पहले अगर जबर होगी तो अल्लाह का नाम मोटा होगा, जबर होगी या पेश होगी तो अल्लाह का नाम मोटा पड़ा जाएगा, अगर जेर होगी तो अल्लाह का नाम बारीक पड़ा जाएगा। जैसे लिल्लाही और वल्लाही मोटा, वाव के ऊपर जबर है। फिर जो है ना, अगर पेश होगी कहीं तब भी मोटा पड़ा जाएगा। ठीक। और रहमान रॉ के ऊपर जो है ना, हमने कहा था रॉ के ऊपर जबर होगी तो रॉ मोटी पड़ी जाएगी, रॉ के ऊपर जेर होगी तो रॉ बारीक पड़ी जाएगी। और रॉ के और भी बहुत से जो है ना उसूल है, वो हम इंशाल्लाह तफसील से पढ़ेंगे, बट फिलहाल हमने ये देखना है, ठीक है। हा जो है वो वस्ता और हलक वाला हा है, ठीक है, जो हमने हलक के बाब के अंदर पढ़ा था, हरूफ हल्किया के अंदर। और ये वाला हा जो है, ये वाला कौन सा है, अक्सा और हलक वाला हा, हमजा हा, ठीक है। और ये वाला वस्ता और हलक वाला हा है, हा, हमजा हा, आइन और हा, ये दोनों इनकी जोड़ी बनती है। फिर दोबारा फिर रहीम के अंदर भी हा ये वाला है। इन दोनों हा को मजबूती से पकड़ना है। फिर उसके बाद हमने पढ़ना है, किस तरह पढ़ेंगे इसको, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रहमानिर्रहीम। मेरी ना कुछ तबीयत थोड़ी सी खराब है, इस वजह से भी मेरी आवाज थोड़ी आप लोगों को बदली बदली सी महसूस हो रही होगी। अच्छा जी, अल्लाह ताला सब बीमारों को शिफाए कामिला व आजिला अता फरमाए। जो जो बीमार है, जिस जिसको तो कोई तकलीफ है, अल्लाह ताला सबको शिफाए कामिला अता फरमाए। आगे हम पढ़ते हैं अलिफ लाम मीम, यहाँ से शुरू करते हैं। अब यहाँ पर मद है, ये मद क्यों है, ये हम मद के चैप्टर में जब जाएंगे तभी पढ़ेंगे, वरना फिर बहुत लंबा हो जाता है, असल चीज रह जाती है। यहाँ मद पढ़ने की किस तरह। अब लाम को मीम से मिलाते हुए शिद्दत इख्तियार कर रही है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, तशदीद है। कुछ लोग ऐसे इफ्लाम मीम पढ़ देते हैं बस, लेकिन नहीं, लाम को मीम से मिलाना है, क्योंकि शद है, शद वाले अल्फाज को हम पीछे वाले को आगे वाले से मिलाते होते हैं। कैसे, अलिफ लाम मीम, ذلكल किताबु ला रैब फीह हुदल लिलमुत्तकीन। ला रई, रॉ के ऊपर जबर है, रई बफी, ذلكल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिलमुत्तकीन। अब मुझे यहाँ पर बताएं आप कि कहीं पर यहाँ पर कोई हरूफ मद्दा इस्तेमाल हुआ है, हरूफ मद्दा आया है जी आप ही। कहाँ पे। ला पे। ला पे कैसे आया है। देखिए ना, वो अलीफ है और उसके पहले फिर जबर है, अलीफ साकिन से पहले जबर है। लेकिन हम इस अलिफ को पढ़ते तो नहीं है। हाँ ठीक। फिर अच्छा, यहाँ ये पे और कहीं देखें। या साकिन से पहले जो कॉफ है ना, उसके नीचे वो है जेर है, तो या मदा। एग्जैक्टली exactly, यहाँ बनता है ना, यहाँ बनता है ला रैब फी, ठीक है, हुदल लिल मुत्तकीन, ये असल बात, मुत्तकीन के ऊपर। फिर आगे हम देखते हैं अल्लज़ीना यू, अच्छा कुछ लोग, एक और बात बताती हूँ आप लोगों को, कुछ लोग ना, आप लोगों को शायद पता भी होगी, वैसे बता रही हूँ सबके लिए क्योंकि रिकॉर्डिंग सब लोग देखेंगे। अच्छा, कुछ लोग ना हमजा के ऊपर झटका नहीं देते, हमजा अगर साकिन हो ना, इस तरीके से आए तो फिर से झटका देते हैं, इसे पढ़ेंगे यू मीनूना, ठीक है। कुछ लोग यू मीनूना पढ़ देते हैं, ऐसे नहीं, जब हमजा साकिन हो जाता है तो उसे उस पे झटका देते हैं। अल्लज़ीना, अल्लज़ीना में जा बारीक है,
الذین نہیں ہے، اس کو الذین نہیں کرنا، الذین ہے، الذین. اور یہاں پر کیا ہے، یہاں پر بھی سیم رول آ رہا ہے، یا ساکن جس سے پہلے زیر ہو. قال قیل جوع، ہم نے اس طرح یاد کیا تھا نا، قیل میں یا ساکن جس سے پہلے زیر ہو. الذین یؤمنون بالغیب، غین، غین بھی موٹا پڑا جاتا ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے. یہ حروف مستعلیہ کتنے ہیں، کون کون سے ہیں، بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے جا کے دیکھیں گے. وَيُقِيمُونَ، یقیمون میں یا ساکن اس سے آگے زیر آ گئی. یقیمون الصلاۃ، صاد سے نون کو صاد سے جوڑیں گے، شدت اختیار کریں گے. پھر صلاۃ و مما، مما کے اوپر کیا کریں گے، میم اور میم آپس میں تھوڑا سا شدت کے ساتھ آئیں گے. ٹھیک ہے، ان مما غنہ کے الفاظ ہے. ٹھیک ہے، ان مما، نا کے بان سے میں ایک الف کے برابر الفاظ کو لے کر جائیں گے نا. اوکے. پھر اس کے بعد رزقناہم، راب کے اوپر زبر ہے، راب موٹا پڑا جائے گا. پھر قاف کے اوپر، قاف حروف حلقیہ میں سے ہے، حروف قلقلہ میں سے ہے. اگر اس کو اس کے اوپر ساکن آ جائے، یعنی اگر قاف ساکن ہے تو حروف قلقلہ میں سے ہوتا ہے، جیسے اق، اج، اط، اب. اس یہ 5 حروف حلقیہ ہیں، حروف قلقلہ ہیں. ان میں کیا کرنا ہوتا ہے، چھوڑنا ہوتا ہے، پھینکنا ہوتا ہے، مطلب آواز کو پھینکنا ہے. جیسے اب، میں یوں نہیں کہہ رہی اب، 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 اب نہیں، میں کہہ رہی ہوں اب، اج، اق، اط، اد. یہ سب 5 الفاظ ہیں جو کہ قلقلہ کے ہیں، جن کے اندر پھینکنا ہے. یہ کب ہوگا، جب ساکن ہوگا. حمزہ زبر دال اد، حمزہ زبر با اب، حمزہ زبر کف اق. اسی طرح یہاں پر قاف ہے، قاف بھی انہی میں سے ایک ہے نا. تو قاف کے اوپر کیا آ گئی، جزم آ گئی، مینس کہ یہ کیا ہے، ساکن ہے. تو اس کا مطلب ہم نے کیا کرنا ہے، یہاں پر قلقلہ کرنا ہے، اس لیے یہاں پر انہوں نے بلو کیا ہوا ہے اس کو. اس پورے مصحف کے اندر جس میں بھی اور آپ ڈفرنٹ تجوید کے قرآن جب لیں گے جن کے اندر کلرنگ تجوید ہوگی، ان سب کے اندر تقریباً جو ہے نا وہ اسی طریقے سے ہوا ہوتا ہے، بلو کلر ہی ہوتا ہے. یا پھر اگر ڈفرنٹ ہو تو پھر انہوں نے نیچے لکھا ہوتا ہے کہ ہمارے اس مصحف کے اندر اس کلر سے یہ ہم نے تجوید کو ڈینوٹ کیا ہوا ہے. تو اسی کس طرح پڑھیں گے، رزقناہم، رزق، 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 پھینکنا ہے، رزق نہیں کرنا، رزق نو، نو رزق، 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 پھینکنا ہے الفاظ کو. امید ہے کہ بات واضح ہو رہی ہوگی. رزقناہم ينفقون. اب نون کے بعد میں نے یہاں پر اخفا کیا ہے، اخفا مینز آواز کو چھپانا. ناک کے بانسے میں نون ساکن اور نون تنوین کی آواز کو چھپانا. ابھی نا آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ میں کیا آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں، ابھی میں نے پڑھا ہے بھی نہیں، میں صرف آپ لوگوں کا مائنڈ سیٹ تیار کر رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو ان سے تھوڑی بہت واقفیت ہو جائے. اور ہم جب اثر تجوید فی القرآن المجید اپنی کتاب پڑھ رہے ہیں، اس کے اندر یہ سارے چیپٹرز آئیں گے، ان تفصیل سے پڑھیں گے، بس پریشان نہیں ہونا. لیکن میں ابھی آپ لوگوں کو تھوڑا سے واقفیت کروا رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو جب ہم پڑھیں تو آپ کو یہ انجانے سے نام نہ لگے. جس طرح میں نے ابھی آپ کو بولا غنہ، غنہ کیا ہوتا ہے. پھر میں نے آپ کو بولا قلقلہ، اس میں نے غنہ بتا دیا آپ کو، ہلکا سا تعارف غنہ کا کروا دیا. یہاں میں نے قلقلے کا بتا دیا آپ کو. پھر یہاں میں کہہ رہی ہوں اخفا. ٹھیک ہے، نون ساکن اور نون تنوین کے اوپر. نون تنوین کیا ہوتی ہے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش. جہاں کہیں بھی آئیں گے 2 زبر 2 زیر 2 پیش آئیں گے، وہاں پر کیا ہوگا، اخفا ہوگا. اخفا کا مطلب آواز کو چھپانا. اخفا نکلا ہے خفی سے. خفی کا مطلب کیا ہوتا ہے، چھپنا یا چھپانا. خفی، چھپانا. تو کیا کیا چھپانا ہے اس میں، نون ساکن کی آواز کو یا نون تنوین کی آواز کو چھپانا ہے. ٹھیک ہے، جیسے تنوین کے اندر کیا ہوتا ہے، ان، ان، ان. ہم زبر ان، وہ ابھی ہم دکھاتے ہیں، ان آتا ہے نا، جیسے کہ دکھاتی ہوں آپ کو، ایک منٹ. یہ دیکھیں، غشاوتن، لاسٹ میں نون کی آواز آ رہی ہے. ہدن، نون کی آواز آ رہی ہے. اس میں جو لاسٹ کا جو نون کا ساؤنڈ آتا ہے نا، اس نون کا ساؤنڈ کو چھپانا ہے. لیکن کہاں پر آئے گی یہ ہر جگہ نہیں، صرف جو ہے 2 زبر 2 زیر 2 پیش اور نون ساکن جہاں پر ہوگا. اب دیکھیں یہاں پر نہیں ہوگا کیونکہ یہاں پر میم کے ساتھ یہ مل رہا ہے، ہدم من ربہم. ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں، دیکھیں نون ساکن کیسے، یہ والا نون ساکن ہے. اب میں ایسے نہیں پڑھوں گی، انذرتہم، میں ایسے پڑھ رہی ہوں اس طریقے سے. ٹھیک ہے، ابھی بس اتنا آپ لوگوں کے لیے کافی ہے. باقی ہم لوگ ان شاء اللہ تعالیٰ نا اس کو تفصیل سے پڑھیں گے، تب میں اس کا تعارف آپ سے کراؤں گی، تو ہم پریکٹس بھی کریں گے کہ ہم نے اسے کیسے پڑھنا ہے. پھر قاف آ گیا. پھر قاف حروف ہلکیہ، حروف مستعلیہ میں سے ہے، موٹا پڑھا جانے والا حرف ہے، اسی لیے اس کو یہاں پر کیا کیا ہوا ہے، گرین کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے،
इसे भी हम लोग ग्रीन करके मोटा करके पढ़ेंगे, जिस तरह इन्होंने यहाँ पे डिनोट किया हुआ है ग्रीन कलर से। यूनफिकून। फिर आगे हम लोग अगले वाले आयत का भी डायसेक्शन थोड़ा देख लेते हैं। फिर आगे वल्लजीना जा बारीक है। फिर उसके बाद युमिनूना सेम है, वही बिमा, बिमा है। और इसके ऊपर मद है। मद इसलिए है कि आगे हमजा आ रहा है, ये भी हम उर्फ मद्दा के अंदर पढ़ेंगे। जिला, नून साकिन आ गया, इख्फा करना है यहाँ पर। अब देखिए असल बात आई है, जा के नीचे जेर आगे बारीक होगी, जिला। ये जा वो है, ये वाली है जाल, और ऊपर है जा। इधर जा है और इधर है जाल। इलई का वमा उनजिला, वमा यहाँ पर भी इसीलिए हो रही है मद, क्योंकि आगे हमजा आ रहा है। तो ये भी हम पढ़ेंगे मद के चैप्टर में, बस आपको तारुफ करवा रही हूँ। फिर आगे नून साकिन आ गया, इख्फा होगा। फिर बा आ गया, देखें बा, जो अभी हमने पढ़ा है कि यहाँ पर ककला करेंगे बा जब साकिन होगा तो। अब यहाँ पर कैसे पढ़ेंगे, कब नहीं पढ़ेंगे, कबली का नहीं पढ़ेंगे, कबली का, कबली का। लाम बारीक होगा, लाम जहां भी आएगा लाम बारीक होगा, ठीक है। कबली का, वबिल आखिरति हुम यूकिनून। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, मद बन रही है ना, जूइन, वाव साकिन जिससे पहले पेश हो, जूइन, इसलिए यूकिनून, काफ मोटा पड़ा जाएगा। अब हम इसको पढ़ते हैं और आपने फिर इंशाल्लाह ताला टाइम हुआ तो सुनाएंगे, वरना फिर इंशाल्लाह ताला आप लोगों ने ग्रुप के अंदर असाइनमेंट अभी 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 मैं सेंड करूंगी इंशाल्लाह। कल मेरा लैपटॉप बिल्कुल कंप्लीट ही तो तरीके से हैंग हो गया था, और पूरी रात पे अल्लाह जाने चलता रहा है, ये खुद ही बंद हुआ है, कैसे हुआ है। तो इस वजह से मैं असाइनमेंट भी नहीं टाइम पे सेंड कर पाई, क्योंकि जब तक अपलोडिंग नहीं होती तो असाइनमेंट का फिर फायदा क्या। चले, अब मैं इसकी तिलावत करती हूँ और फिर आपने इसे गौर से सुनना है। उम्मीद है कि जो भी इसमें शुकुर शुबहात होंगे वो मैंने आप लोगों के सॉल्व कर दिए होंगे। फिर भी कुछ हो तो आप लोग चाहे तो पर्सनल में कांटेक्ट कर लें, चाहे ग्रुप में कर लें, नो इशू एट ऑल इंशाल्लाह ताला। चलिए, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون। अब जो यूकिनून है, यहाँ पर वाव साकिन और नून के ऊपर पेश आ गया, ये फिर मद बन गए, ठीक है ना, ये भी मद और ये भी मद। वाव साकिन जिससे पहले पेश हो, ये क्या बनता है, मद बनती है, वाव मद्दा। ठीक है, इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज वाज़ेह हो गई होगी। बाकी इंशाल्लाह ताला कुछ भी इश्काल होगा, कोई भी बात होगी तो वो इंशाल्लाह ताला ग्रुप में भेज दीजिएगा। अभी इस वक्त जो सवाल है वो मुझे अभी बता सकते हैं, 4 मिनट अभी रहते हैं। कोई इशू है तो मुझे बताएं। अभी मैं सुन नहीं रही आप लोगों का, सुनूंगी बस एक ही बार, क्योंकि 4 मिनट है, कम है ये। कोई क्वेश्चन, कोई बात, कोई जहन में कोई मुश्किल, कुछ भी मुश्किल लग रहा है तो मुझे बताएं। चलो ठीक है, इंशाल्लाह ताला आप लोगों ने स्टे ट्यून्ड रहना है, साथ नहीं छोड़ना, जाना नहीं है, क्योंकि देखिए मंजिल जो है ना वो बहुत कम लोगों को मिलती है। रास्ते पर बहुत लोग स्टार्ट करते हैं चलना, बट वो कुछ हार जाते हैं, कुछ अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं कि हम नहीं कर सकेंगे, कुछ मेहनत नहीं करना चाहते, कुछ के लिए कुछ मसरूफियात में से टाइम नहीं निकालना चाहते। वरना क्योंकि अल्लाह ताला का तो वादा है, वह लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है। फिर अल्लाह फरमाते हैं वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो भी हमारी, ये नो मैटर कौन किस फिरके से, किस शक्ल का है, किस क्या उसका कद है, क्या उसकी बॉडी है, कितना वो अक्लमंद है नहीं है, क्या उसके पीछे का पास्ट है फ्यूचर, कुछ अल्लाह ताला कुछ नहीं देखते। अल्लाह फरमाते हैं वल्लज़ीना जाहदू, जो हमारे रास्ते में कोशिश करेगा,
लनहदियन्नहुम सुबुलना, हम उसे अपने तरफ आने का रास्ता जरूर बजरूर दिखाएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंसान एक तरफ एक चीज का सोचे कि मैंने ये करना है, और वो उसके लिए मेहनत करे और वो उसे पा ना सके। ये अल्लाह का कानून नहीं है। जो इंसान कोशिश करता है वो अल्लाह के हुक्म से अल्लाह अल्लाह वो उसे पा लेता है चीज को, और अल्लाह ताला उसके लिए फिर मुकद्दर भी करता है, और खासतौर पर खैर के कामों में ये चीज ज्यादा है। तो इंशाल्लाह ताला साथ रहना है, रोज क्लास लेनी है, कोई क्लास स्किप नहीं कर रही इंशाल्लाह ताला, इल्ला ये कि हमारी कोई मजबूरी बन जाए, कोई सेहत का मसला हो या कोई मसरूफियत का शदीद मसरूफियत का मसला हो। मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों की क्लास ना छोड़ूं। कोशिश मेरी यही होती है, मैंने अगर कहीं प्लान बनाया भी हो जाने का, तो मैं जो है उसे आगे पीछे करती हूँ किसी न किसी तरह, कि नहीं मैंने अभी नहीं जाना, मेरी क्लास है, मेरी क्लास है। तो आप लोगों ने भी इंशाल्लाह ताला इसको जरूर जो है ना फोकस करना है, इसको कंप्रोमाइज नहीं करना। देखिए जो अल्लाह ताला के हुक्म को पीछे फेंकता है ना, फिर अल्लाह ताला क्या क्या ख्याल है, अल्लाह ताला उसको पीछे नहीं फेंकेंगे, अल्लाह ताला उसको आगे रखेंगे। इसलिए अल्लाह के अहकामात को, अल्लाह की बात को जो है ना वो कभी हमने पीछे नहीं करना। अपनी मामूलात को इसके गिर्द जो है ना राउंड करें, इससे गिर्द घुमाए, ना कि अपनी क्लास को अपने मामलात के गिर्द घुमा रहे हो, ठीक है ना। इंशाल्लाह ताला बाकी अल्लाह ताला हम सबको इखलास अता फरमाए, अल्लाह ताला हम सब के दिलों में ईमान की तजदीद फरमाए, अल्लाह ताला हम सबको कुरान को सीखने वाला, सिखाने वाला, पढ़ने वाला, पढ़ाने वाला, इसका इल्म लेने वाला और फैलाने वाला, इस पर तदब्बुर करने वाला, इस पर गौर व फिक्र करने वाला और इससे हिदायत और शिफा पाने वाला अल्लाह ताला हमें बना दे। अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाए और हमें राजी कर दे। अल्लाह ताला हमें दुनिया और आखिरत में कामयाबियां और रिज्क और सुकून अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।